Welcome all to my YouTube channel. Today's our topic is law of chemical composition. The first law of chemical combination is law of conservation of mass. First law of chemical combination law of conservation of mass को कहते हैं. It states that matter neither be created nor be डिस्ट्रॉयड. फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है कि मैटर ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसे एंटोन लेवोसियर ने 1789 में प्रपोज किया था. लेट अस सी बाय एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन के मोलिक्यूल का एटॉमिक मास 32. ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मोलर मास होता है 12 प्लस 32. जब हम देखेंगे तो हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बोथ मास सेम होगा. तो यही बात हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि रिएक्टेंट में जितना मास होगा आफ्टर प्रोडक्ट भी वही फॉर्म करेगा. हम कुछ और एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फेरस क्लोरिक रिएक्ट विथ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन को बैलेंस करते. हियर अवर क्लोरीन एटम इज 3, हियर क्लोरीन एटम इज 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी balance the reaction. So by balancing, our reaction will be 2 FeCl3 plus 3 MgSO4 gives Fe2SO4 3 thrice plus MgCl. Now we can, here we have 3 MgCl, can here. Now calculate 2 Fe, 2 Fe, 6 Cl, here we have 6 Cl, 3 Mg, 3 Mg, 3 sulfate, 3 sulfate. So our reaction is balanced. Now we can calculate the mass. Okay, by calculating the mass we can find out that the product and the reactant masses are the same. Similar for the example, potassium chloride react with water form potassium hydroxide and HCl. The reactant masses and the product masses are the same. Let's see. The molar mass of FeCl3 is 162 because we have 2 moles, that's why 2 into 162. Then 3 MgSO4, the molar mass is 3 into 120. MgSO4 molar mass is 120. 3 into 120 is equals to 360. FeSO4 molar mass 399 and 3 moles of magnesium chloride molar mass 285. When we calculate the reactant side mass and the product side mass, we get 684. Again the reactant product mass are the same. Similar for our third example, potassium chloride and the water. The molar mass of potassium chloride is 74 and the water is 18. When they react and form carbon hydroxide plus HCl, the molar mass of potassium hydroxide is 56 and the HCl hydrochloric acid is 36. Again when we calculate, reactant molar mass is equals to 92 and the product masses are 92. Again the left hand side is equals to right hand side. It means we verified through our example that the statement matter neither be created or nor be destroyed is this. Our second law of chemical composition is law of definite proportion. हमारा second law of definite proportion में स्टेट करता है that a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. कि अगर कोई कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ऑलवेज प्रपोर्शन उसका सेम वेट में ही कॉन्स्टिट्यूट करेगा. इसी को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था एंड इन्होंने सबसे फर्स्ट इसे क्यूप्रस कार्बोनेट में ऑब्जर्व किया था. ही ऑब्जर्व दैट in natural cuprous carbonate the percentage of copper, oxygen and the carbon, and similarly he observed in synthetic cuprous carbonate and उन्होंने देखा कि natural and synthetic cuprous carbonate exactly same percentage by weight
कंटेन करते हैं। इट मीन्स हम कहीं पे भी जाके हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन करें, उसमें मास परसेंटेज सेम ही रहेगा, चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरल हो। फॉर एग्जाम्पल हम वाटर का लेते हैं, लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल, वाटर, नेचुरल वाटर। कहीं पे भी हम हमारा वाटर ले, चाहे वो टैप वाटर हो, रिवर वाटर हो, लेक वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 11.1%, ऑक्सीजन 88.81। सिमिलरली अगर हम इसे लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी इसका कंपाउंड फॉर्मेशन H2O ही रहेगा। हाइड्रोजन सिमिलरली 11.11 एंड ऑक्सीजन परसेंटेज 88.88 ही रहेगा। दिस वॉज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। Now our third law of chemical composition is law of multiple proportion proposed by Dalton in 1803. Law of multiple proportion डाल्टन ने प्रपोज किया था 1803 में। इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक से ज्यादा तरीके का कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, द मासेस ऑफ एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, जब भी वो कंबाइन करेंगे तो उनके मासेस आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, जब भी वो कंबाइन करेंगे उनके मासेस ऑलवेज स्मॉल होल नंबर में ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड वाटर फॉर्म करेगा। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम ही है, हाइड्रोजन एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ अगेन डिफरेंट कंसंट्रेशन में रिएक्ट कर रहा है, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज चेंज हियर। फर्स्ट वाटर फॉर्मेशन हो रहा था, सेम एलिमेंट है, बट कंसंट्रेशन चेंज होने के कारण, कंडीशंस चेंज होने के कारण हमें प्रोडक्ट वेरी हो रहा है। यही हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि हम सेम एलिमेंट से भी दो या दो से ज्यादा टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। अनदर फॉर एग्जाम्पल कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। Our fourth law of chemical combination is Gay-Lussac law of gaseous volume. This law was given by Gay-Lussac in 1808. It states that when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. जब भी हमारा रिएक्टेंट है, जब भी वो गैसियस स्टेट में आपस में कंबाइन करेगा तो वह एक सिंपल रेशियो के ही फॉर्म में कंबाइन होगा। कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 ml ऑफ हाइड्रोजन, हमने कितना ml हाइड्रोजन लिया है, 100 ml हाइड्रोजन लिया है। इट रिएक्ट विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। जब 100 ml ऑफ हाइड्रोजन 50 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल फॉर्म 100 ml ऑफ H2O। 100 ml 50 ml के साथ 150 ml ना बनाते हुए कितना फॉर्मेशन करेगा, 100 ml ऑफ वाटर का फॉर्मेशन ही करेगा। यही हमारा लॉ गै-ल्यूसैक ने दिया था कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन द गैसेस कंबाइंस, जब भी गैस आपस में कंबाइन होगी, दे आर इन अ सिंपल होल रेशियो, वो हमेशा होल रेशियो में ही कंबाइन होंगी। देन इट वाज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय एवोगैड्रो, which was the rule fifth law of chemical combination given by Avogadro law, which Gay-Lussac law was described by the Avogadro in proper terms in 1811. जो एवोगैड्रो थे उन्होंने ही गै-ल्यूसैक लॉ को और मॉडिफाइड किया या उसे बेटरली एक्सप्लेन किया 1811 में। उन्होंने कहा इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। एवोगैड्रो ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस की इक्वल वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल ही कंटेन करेगी। थैंक यू।